Saju and Prasita, I think we can start. Okay. So I'll just give everyone a brief intro and then we can just start. So a very good afternoon to everyone. For sure, Prasita and Saju both don't need any introduction ever. They have been one of our favorites on More TV show from now on onwards. So apart from that, for today we have a very special show. Like, we have been talking about dementia from a very, very long time, but there are various challenging behaviors that are associated with dementia. Sometimes समझ में नहीं आता कि अब इससे deal कैसे करें, and sometimes it gets very difficult for the caregivers in fact to deal with such such situations. वो खुद हमारे लिए demotivating हो जाता है कि अब कैसे इससे deal करें. So Saju and Thomas will be throwing light on this, I believe, and also at the same time they will be focusing on how you can deal with it, how you can just further on kaise you can be better caregiver as a person, and how you can just with very patience, in a very patient manner, you can deal with every stress that comes out with it. So over to Saju first, and then Prasita, I believe she will take on from there. So Saju, over to you. Thank you, Sanjana, for the brief introduction, and good afternoon, everyone. Happy to see everyone, the happy faces. So I think most of you know me and Prasita, and we recognize a lot of faces here, a lot of names, Rajita Aunty. So for those who don't know us and who have been here for the first time, so giving you a little bit brief about myself. My name is Saju Thomas. I'm a bachelor's degree holder in nursing, and I have a total of 6 years of experience. I have been taking care of dementia elderlies at Epoch Eldercare Private Limited since 5 years now, and have a hands-on expertise in managing elders with dementia and their expertise in managing their care plan. And based on these experiences that we have, we are going to talk about dementia. We have been taking these sessions regularly with Mo TV, and today the topic that we are going to discuss is challenging behaviors in dementia and how you manage it at home. So over to Prasita, who will start the session. Thanks, Saju. So good morning all. As Saju has given a brief about himself. So about me, my name is Prasita. I'm head of clinical operations at Epoch Eldercare. So Epoch Eldercare is an assisted living which take care of elderlies who suffer from dementia, Alzheimer's, or any other type of medical comorbidities, and they need assistance in their daily living. So we take care of them, we support them. About me, I'm a ex-defense. I have served in Indian Army for 5 years. I have done Masters in Hospital Administration, and right now I'm working with Epoch Eldercare and taking care of elderlies. So it has been always a privilege, and it's always gives immense joy and satisfaction whenever we work for elderlies, and we bring something new or bring a little bit change in their life. So today, as Saju has mentioned, so in our last session, we have discussed about dementia and its symptoms, what happened in dementia, how it occurs, and different types of dementia stages and everything. So in today's sessions, what we are going to discuss in detail is the challenging behaviors which happens in dementia. तो अगर हम में से कोई भी घर पे केयर कर रहा है डिमेंशिया रेसिडेंट के फैमिली मेंबर्स की, तो ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे जैसे जिससे आप घर पे केयर कर सकते हो. एंड अगर ये सब करने के बाद भी हम एल्डरली को हेल्प नहीं कर पाते हैं उनके चैलेंजिंग बिहेवियर में, देयरफॉर इट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड केयर, या फिर आपको कुछ एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होगी. सो just starting with the session, let me just share my screen. So what we are going to discuss mainly in today's session is that how to identify the behaviors, कैसे क्या चीजें होती हैं जो फैमिली मेंबर्स फेस करते हैं, तो वो क्या क्या चीजें होती हैं, we will be discussing that, and how to identify the what are the cause of challenging behavior. If somebody is behaving in a particular way, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो क्या होगा वो हम इसमें समझेंगे. And different type of strategies which we can use. अगर कोई गुस्सा हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उनको शांत करने के लिए. So everything we will be discussing step by step. So over to you, Saju. Thank you, Prasita.
सो आपको जैसे डिमेंशिया के बारे में हम जानते ही हैं, डिमेंशिया इज ग्रुप ऑफ इट्स a neurological condition. It's an irreversible condition and currently not curable. So dementia के बारे में हम पिछले सेशंस में काफी कुछ देख चुके हैं. अब हम देखते हैं कि what are challenging behaviors. So challenging behaviors are nothing but they are symptoms or the changes that elderly with dementia faces, and these symptoms, when they aggravate, the family gets to notice, and they have different challenges in managing these symptoms. So let's see what are challenging behaviors in an elderly with dementia. So what are symptoms? So there are behavioral and psychiatric symptoms in dementia, which are let's see what are the behavioral challenges that we usually have. So there are aggressions, agitations, difficult with self-care. ये सारी चीजें बहुत ही common रहती है. Irritability, meaningless repetition of on words, एक ही word को बार बार दोहराना, चाय बोल रहे तो चाय चाय चाय, या फिर पैसा पैसा. So ये कुछ words हैं जो हम normally सुनते हैं या फिर हम लोग ने experience किया है. Personality changes, lack of restraint पे मैं थोड़ा टाइम लूंगा समझाने के लिए कि जैसे कोई Sorry? I thought you spoke. Sure. Sorry. Right. So lack of restraint में जब आप देखते हो किसी कोई elderly अपने emotions पे, particularly with dementia, emotions पे control नहीं कर पा रहे, वो social मतलब अपना social environment में restrain नहीं कर पा रहे, abusive language use करना या फिर ऊंची आवाज में बात करना या फिर ऐसी चीजें बोलना जो socially normally बात नहीं करते, वो restrain वो control ना हो पाना, that is lack of restraint. Wandering, यहाँ वहाँ भटकते रहना, aimless कहीं पे भी चले जाना, ये सारी चीजें common है. और sundowning, very common in dementia, जो evening होते होते challenges आपको देखने को मिलता है. So ये सारी चीजें behavioral challenges में आती हैं. अब देखते हैं mood में anger है, apathy, दूसरों के लिए दुखी नहीं फील करना या फिर emotionless होना, general discontent, सेंस ना करना, मतलब कोई भी बात करो उसमें कोई सेंस नहीं हो पाना, ये सारी चीजें मूड में देखे जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं. इसके अलावा साइकोलॉजिकल में डिप्रेशन है, हेलुसिनेशन है, पैरानोया है. तो ये सारी चीजें या तो प्री एग्जिस्टिंग हो सकती हैं या फिर डिमेंशिया से एसोसिएटेड हो सकती हैं. ये कब होती है? जब ब्रेन में चेंजेस आने शुरू होते हैं. तो ये सारी चीजें कॉमन है, बिहेवियर, मूड, साइकोलॉजिकल. इन सारी चीजों को रहते हुए क्या होता है कि पूरे बॉडी पे भी, फिजिकल एस्पेक्ट पे भी चेंजेस आना शुरू होता है. और वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, रेस्टलेसनेस, फिजिकल में गाइड चेंजेस, चलने फिरने में दिक्कत आती है, बैलेंस नहीं कर पाना. सो ये डिमेंशिया के चैलेंजिंग बिहेवियर्स में ही इंक्लूड किया जा सकता है. और लास्ट में और जो मस्कुलर मोटर फंक्शंस है, सीक्वेंशियल थिंग्स है जो फॉलो करनी होती है, वो सीजन नहीं कर पाना. ये प्रसिद्ध है. नेक्स्ट. सो इसके अलावा बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जो हैं जो हम देख सकते हैं वो है रिपीटेशन, विथड्रॉल, पेसिंग, एक ही जगह पे बार बार घूमते रहना या फिर ऊपर नीचे होते रहना, दैट इज कॉल्ड पेसिंग. लैक ऑफ इनिबिशन, लैक ऑफ इनिबिशन इज लैक ऑफ आल्सो पार्ट ऑफ लैक ऑफ रेस्ट्रेंट, जहाँ पे एल्डरली अपने कमरे से बाहर निकल के आके कपड़े उतार रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि उनके पेसिंग क्या है? पेसिंग, व्हाट इज पेसिंग? पेसिंग है आंटी, एक मतलब एक ही ब्रीफ जगह पे बार बार घूमते रहना, यहाँ से वहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ चलना या फिर ऊपर से नीचे होते रहना बिना कोई कारण के, उसे पेसिंग कहेंगे. ओके. और लैक ऑफ इनिबिशन में कपड़े मतलब बाहर लोगों के बीच में जा रहे हैं और एकदम से अनड्रेस कर रहे हैं, ये सारी, ये भी इनिबिशन में, लैक ऑफ इनिबिशन में आता है या डिसइनिबिशन बोल सकते हैं. हाइपरसेक्सुअलिटी या इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर भी चैलेंजिंग बिहेवियर का एक पार्ट है. हमारे ब्रेन के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया भी एक टाइप ऑफ डिमेंशिया है. फ्रंटल पार्ट जो है ब्रेन का, वो थिंकिंग, लॉजिक और जजमेंट जैसी चीज़ों पे फंक्शन करता है.
अब जब ये चीजें अफेक्ट हो जाती है तब सेक्सुअल बिहेवियर भी देखने को मिलता है, हाइपरसेक्सुअलिटी भी देखने को मिलता है। जैसे जैसे स्टेज प्रोग्रेस होता है दूसरे टाइप ऑफ डिमेंशिया में भी ये कॉमन होता है। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, जैसे बार बार किसी चीज को रिपीट करना, एक ग्लास को उठा के बार बार यहाँ से वहां उठा के रखना, टॉयलेट में जाके, मतलब थोड़ी देर पहले ही टॉयलेट यूज किया होगा लेकिन बार बार टॉयलेट जाना है करके बोलना, किसी भी चीज को रिपीट करना या फिर कोई भी काम को रिपीट करना ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स में आ सकते हैं। और वॉन्डरिंग विच इज वेरी कॉमन, कहीं पे भी निकल जाना और फिर मतलब वॉन्डरिंग के रिस्क में रहते हैं कि वो खोज सकते हैं, उनको एनवायरनमेंट में पता नहीं रहता है वो कहाँ पे। तो ये सारी चीजें एडिशनल सिम्टम्स में आती है। ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर पे उनकी केयर कर रहे होते हैं तो ये जो सिम्टम्स जो साजू ने बताए हैं, जो एजिटेट हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं, वॉन्डरिंग होता है, तो हमें एज ए केयर गिवर हमें क्या लगता है, बिकॉज हमें डिमेंशिया के बारे में नॉलेज नहीं है या हमें उसके सिम्टम्स के बारे में वी डोंट हैव एनी नॉलेज, सो व्हाट वी थिंक एज ए केयर गिवर कि ये तो फालतू में गुस्सा कर रहे हैं, ये तो जानबूझ के बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, या फिर ये जो पर्टिकुलर टाइप से बिहेव कर रहे हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं, या फिर चीजों को बना रहे हैं। हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं क्योंकि वो जब एकदम से बैठे हुए हैं और वो एकदम से गुस्सा करने लगते हैं जो एल्डरली होते हैं, सो हमें लगता है कि अरे क्या हो गया इनको, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, जबरदस्ती ये चिल्ला रहे हैं, जबरदस्ती गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे केयर गिवर हमें लगता है। बट नॉर्मली ये जो बिहेवियर्स होते हैं ये उनकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज की वजह से होता है, जो साजू ने एक्सप्लेन किया। मे बी वो अपनी चीजों को हमें बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ये एक्सप्रेस करने का तरीका होता है गुस्सा करना है या फिर इधर से उधर जाते रहना है, क्योंकि उनकी जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। सो व्हाट आर द कॉजेस जो which leads to this challenging behavior? So कई चीजें हो सकती हैं, there can be a lot of reasons, so we have taken some of the reasons. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई मदर और मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो मेरे दिमाग में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप चीज होगी कि मुझे सुबह जाने से पहले अपनी मॉम को नहलाना है, खिलाना है, ब्रेकफास्ट कराना है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना के उनको रूम में बैठाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सुबह जल्दी उठूंगी, उनको जल्दी उठाऊंगी, उनको घसीट के मैं बाथरूम ले जाऊंगी, नहलाऊंगी जबरदस्ती, उनको बोलूंगी कि नो आप पॉटी करना ही है, आपको वॉशरूम जाना ही है, आपको ये नाश्ता खाना ही है, क्योंकि मैं उनका केयर करना चाहती हूँ, उनका अच्छा देखभाल करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट की शी टेक हर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। बट अब मैं पीछे घूमती हूँ एंड आई सी फ्रॉम माई मॉम्स साइड, वो क्या चाहती हैं, वो और सोना चाहती हैं, वो अभी खाना नहीं चाहती हैं, वो दोपहर में जब धूप आ जाएगी तब नहाना चाहती है, या फिर वो आज पीले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहती और मैंने पीले रंग का कपड़ा निकाला है। सो उस सब चीजों की वजह से वो अपना गुस्सा इसी तरह से दिखाती हैं कि वो एंग्शियस हो जा रही हैं, बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अभी ये चीजें नहीं करनी है। तो मेरा जो डेली रूटीन है, जो केयर गिवर्स का डेली रूटीन होता है, वो एक वन ऑफ द थिंग होती है जो ट्रिगर करती है फॉर दिस चैलेंजिंग बिहेवियर। इसके रिजल्ट में व्हाट हैपेंस इज दिस एल्डरलीज दे शो ऑल दिस सिम्टम्स, लाइक दे येल, दे स्टार्ट येलिंग, दे बिकम रेस्टलेस, केयर को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं मुझे नहाना नहीं है, मुझे बाल नहीं धोना, मुझे कपड़े नहीं चेंज करने। एंड ऑफन दे ऑल्सो शो कॉम्बेटिव बिहेवियर, जो होता है कि वो फिजिकल एग्रेशन दिखाते हैं, जिसमें कि वो कुछ भी हो सकता है, वो हमको लात मार सकते हैं, हमको धक्का दे सकते हैं, हमको हाथ से मार सकते हैं, किक कर सकते हैं, नोच सकते हैं। सो दिस इज ऑल common behavior which happens, but this is all related to something related to their daily routine जो हम उनको provide करना चाहते हैं। The second thing is कि if somebody is behaving in a particular way, कि गुस्सा कर रहे हैं या फिर चुपचाप बैठे हुए हैं, एकदम से बोल रहे हैं कि वहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमारे दिमाग में एकदम से चीज आती है कि कुछ साइकोलॉजिकल होगा, इनको कुछ साइकेट्रिक बीमारी हो गई है, एंड एकदम से चीज हमारे दिमाग में आती है कि वी शुड गिव देम सम मेडिकेशन और ये काम हो जाएंगे। अब what happen is किसी को पेट में दर्द हो रहा है एंड वी हैव गिवन अ पेन किलर, उनका पेट दर्द सही हो गया, दूसरे दिन वापस पेट दर्द होगा, क्योंकि हम उसकी रूट पे नहीं पहुंच रहे हैं। वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग द कॉज कि पेट दर्द किस वजह से हो रहा है, बट हम बस दवाई देते जा रहे हैं। चैलेंजिंग बिहेवियर में यही होता है कि जब फैमिली मेंबर्स देखते हैं कि वो गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो हम एकदम इमीडिएटली जाते हैं, हम कुछ भी मेडिकेशन, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पुराना हिस्ट्री नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, हम उनको बोलते हैं कि ये इनको गुस्सा करते हैं, किसी से बात नहीं करते, नहाते नहीं है, एंड दे गिव सम साइकेट्रिक मेडिकेशन।
एल्डरली शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों में फिर से उनका वो गुस्सा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा मेन एम होना चाहिए कि वी कम टू द रूट कॉज एनालिसिस, कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हमें वो चीज को आइडेंटिफाई करना है। एंड वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो वी विल हेल्प यू आउट टू रिकॉग्नाइज दोस थिंग्स। साजू, प्रसिद्धा, फिर से आप अपनी पिछले वाली स्लाइड पे एक बार जाएं। सॉरी। सो प्रसिद्धा के कंटिन्यूएशन में जो उन्होंने बताया, उसी के साथ हम क्या करते हैं नॉर्मली। हमारा अप्रोच इपॉक में हम लोग जब ये चैलेंजिंग बिहेवियर्स आते हैं और ये सारी चीजें होती है, तो हम लोग का एक पर्टिकुलर अप्रोच रहता है जहाँ पे हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स नहीं एडमिनिस्टर करते। हम आपको यही इस सेशन के दौरान समझाना चाह रहे हैं कि हर चैलेंजिंग बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर रहता है। जैसे प्रसिद्धा ने अपने पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि जरूरी नहीं है कि उनको उस टाइम पे खाना था, उनको उस टाइम पे नहाना था। उनके चॉइसेस को जब हम नहीं बता पा रहे, और वो जब इस चीज के बारे में बात कर रहे थे, आप में से काफी लोगों ने सोचा कि वो फिर बता के वो तो बता भी सकते होंगे, वो तो बता सकते हैं उनको खाना नहीं खाना है, तो वो तो बता सकते होंगे उनको नहीं नहाना है तो। लेकिन काफी बार क्या होता है कि जैसे स्टेज प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे लैंग्वेज में इफेक्ट आता है, स्पीच में इफेक्ट आता है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और उस वजह से वो जो ट्रिगर हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे वो शेड्यूल फॉलो करने वाला, जो कि जरूरी है, एक शेड्यूल बनाना, उसके हिसाब से चलना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन वहाँ पे चॉइसेस और वैसे वो एल्डरली उस चीज के लिए कंफर्टेबल होंगे या नहीं, वो भी देखना जरूरी है, तब जाके वो ट्रिगर में कन्वर्ट होता है। और जब हम लोग ने ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमें मेडिकेशंस के ऊपर रिलाई करना नहीं पड़ता ज्यादा, और हम उस हिसाब से अपने एल्डरली को मैनेज कर सकते हैं। मेडिकेशन पे रिलाई करने में जिन लोगों का हम ट्रिगर मैनेज कर सकते हैं, उनका अगर हम मेडिकेशन पे रिलाई करते हैं, तो नो डाउट उनका हमारा एज ए केयर गिवर का काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो फिर उनके पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं है वो चैलेंजिंग बिहेवियर तक पहुंचने के लिए, या फिर एजिटेशन, एग्रेशन, फिजिकली अब्यूज करना, ये सारी चीजों के लिए उनके पास ताकत ही नहीं होती, क्योंकि वो ड्राउजी हो जाते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से। तो उससे ये लगता है कि ओके अब वो मैनेजेबल है, अब हमें इतना टेंशन नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज कहाँ कर रहे हैं? उनके ओवरऑल हेल्थ पे, उनके ओवरऑल वेलबींग पे, जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है, जहाँ पे वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप से जो चीजें कर सकते थे वो मेडिकेशन की वजह से या ड्राउजीनेस की वजह से अब नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। नो डाउट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस नेसेसरी होते हैं कुछ केसेस में, जैसे प्रसिद्धा ने कहा स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन विद साइकोसिस, ये कुछ एग्जिस्टिंग कॉमोर्बिडिटीज हैं जिसके लिए हमें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस एक न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से एडवाइस लेके लेना पड़ता है। और डिमेंशिया विद साइकोसिस इज आल्सो मतलब एक डिफिकल्ट कंडीशन है जहाँ पे चैलेंजिंग बिहेवियर्स मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। फिजिकल अब्यूज या फिजिकल हार्म, सेल्फ हार्म और दूसरों को हार्म करना बढ़ जाता है, जहाँ पे हमें रिलाई करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम एंटीसाइकोटिक्स पे रिलाई करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें एक और चीज ध्यान रखना है कि हमें रेगुलरली फॉलोअप लेना पड़ता है इन मेडिकेशंस के ऊपर। हमें रेगुलरली देखना पड़ता है कि अब एल्डरली को उस चीज की जरूरत है या नहीं है, तो हम उसे बीन ऑफ करके उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करें। सो यहाँ प्रसिद्ध। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे स्टेज प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे लैंग्वेज और स्पीच में इफेक्ट आने शुरू होते हैं, और इस दौरान क्या होता है कि काफी सारे नीड्स, जो फिजिकल नीड्स हैं, जो सोशल नीड्स हैं, ये सारी चीजें प्रॉपरली बता नहीं पाते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग बिहेवियर से उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब ये अनमेट नीड्स क्या हो सकते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। खाना खाना, न्यूट्रिशन, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगना, लेकिन वो टाइम शायद खाना मिल नहीं रहा हो फॉर एग्जाम्पल, और उनको भूख लग रही है, अब वो कैसे एक्सप्रेस करे? वो खाना बोल नहीं पा रहे, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली कि उनको खाना खाना है, पर वो कैसे दिखा रहे हैं? वो गुस्सा कर रहे हैं, या फिर टेबल पे हाथ पछाड़ रहे हैं बिना वजह, या फिर चिल्ला रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड रिपीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमें नोट करना है कि वो पर्टिकुलरली किस चीज के लिए हो सकता है, या पर्टिकुलरली क्या किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। अनमेट नीड्स में हाइड्रेशन, पानी टाइम पे पीना, या फिर उनको प्यास लग रही है, या फिर उनको मुंह सूख रहा है, तो ये सारी चीजें भी देखना पड़ता है। अगर कोई ट्रिगर आपको दिखता है तो हमें ये जो चीजें हैं, सबसे पहला जो अप्रोच होना चाहिए वो फिजिकल नीड के लिए होना चाहिए, कि हम देखें कि उनको ऐसी किसी चीज की जो जरूरत नहीं है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। जैसे खाना बता दिया, पानी बता दिया, टॉयलेटिंग, उनको बाथरूम जाना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हमारे एल्डरली हैं विद डिमेंशिया जिनका हम ख्याल रखते हैं,
वो उनका लैंग्वेज अफेक्टेड है, स्पीच अफेक्टेड, वो बोल नहीं पाती उनको क्या चाहिए, वो दूसरी चीजें बता मतलब बात करती हैं, लेकिन उसमें हमें सेंस ढूंढना पड़ता है। अब आंटी को जब टॉयलेट जाना होता है तो वो एकदम से रेस्टलेस हो जाती है, वो यहाँ वहाँ वॉन्डरिंग शुरू कर देती है, एक जगह बैठती नहीं है, चीजें उठाने लगती है, यहाँ रखने लगती है। उस चीज को हमने आइडेंटिफाई किया काफी टाइम बाद, नोट्स बनाने के बाद, काफी बार देखने के बाद कि ये क्या हो सकता है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये टॉयलेटिंग का इशू है, कि उनको जब बाथरूम जाना होता है तब जाके वो इस चीज को करती है, और इस दौरान हम लोग उनको बाथरूम ले जाते हैं तो उनका वहाँ पे नीड फुलफिल करते हैं और वो वापस क्या बोलते हैं शांत हो जाती है, उनका चले वो एजिटेशन, एग्रेशन, वाटरिंग, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज करना, फिजिकल नीड हर किसी के लिए जरूरी होता है। वॉकिंग, एल्डरली अपने प्राइम टाइम में रेगुलरली वॉकिंग करने जाते होते हो, एक्सरसाइज करने जाते हो, अभी डिमेंशिया की वजह से ना कर पा रहे हो, तो वो एडिशनल सपोर्ट हमें देना पड़ता है एज ए केयर गिवर। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो सारी चीजें जो वो करते थे उसे कंटिन्यू करें, स्पेशली फिजिकल चीजें जब इन्वॉल्व होती है। डायपर गीला होना या फिर क्या बोलते हैं कपड़े गीले होने, वो बता नहीं पा रहे हैं, उस वजह से इरिटेशन हो रहा है। बच्चों के साथ हम देखते हैं ये कि जब उनका डायपर गीला होता है या फिर उनके कपड़े गीले होते हैं तो वो रोने लगते हैं जब वो बात नहीं कर पा रहे होते। तो उसी तरीके से हम एक डिमेंशिया एल्डरली को कंपेयर कर सकते हैं, जब उनका स्पीच, उनका लैंग्वेज, उनका थॉट प्रोसेस इफेक्ट हो जाता है, कॉग्निटिवली वो चैलेंज, डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो एक बच्चे की तरह ही वो अलग अलग टेंट्रम्स दिखाना शुरू करते हैं या फिर अलग अलग बिहेवियर्स दिखाना शुरू करते हैं, जहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं या फिर जो भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स, सिम्टम्स हमने जो डिस्कस किए पहले। इसके अलावा नींद नहीं आना, अगर रात को नींद नहीं आ रही प्रॉपरली तो ऑटोमेटिकली वो दिन के टाइम पे इफेक्ट कर रहा है। अगर साउंड स्लीप नहीं है, रात को जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही, वॉन्टिंग है, दिन के टाइम में ऑटोमेटिकली इरिटेबल हो जाते हैं। हम भी नॉर्मल, अगर हम रेगुलरली अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते तो हमें भी थकान महसूस होता है, हमें भी बात बात पे इरिटेशन होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन क्या बोलते हैं फिजिकल नीड है, और साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट करता है हमें अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होता है। तो एक डिमेंशिया एल्डरली के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीप रेगुलरली होना चाहिए। तो ये हैं कुछ फिजिकल नीड्स जो हम लोग देखें। इसके अलावा एनवायरमेंटल इरिटेंट्स क्या होते हैं। अब एनवायरमेंटल इरिटेंट्स में फिजिकल फॉर्म्स में जो होते हैं वो है नॉइस, बहुत ज्यादा शोर आना है, आसपास हल्ला गुल्ला मच रहा है और उस वजह से इरिटेट हो रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे, हम सोच रहे हैं कि ये क्यों परेशान हो रहे हैं, पर हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कहीं ये टीवी का वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है, कहीं बच्चे ज्यादा शोर तो नहीं मचा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे एल्डरली, हमारे बुजुर्ग परेशान हो रहे हो, वो गुस्सा कर रहे हो, वो वहां से उठ के चले जा रहे हो, कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीजें देखना पड़ता है। कंफ्यूजिंग विजुअल स्टिमुलाई, इसका एग्जाम्पल हम न्यूज चैनल का दे सकते हैं। जैसे न्यूज चैनल में ऊपर की तरफ हेडिंग में न्यूज लिखा हुआ आ रहा होता है, नीचे रनर्स चल रहे होते हैं जहाँ पे न्यूज लिखे में जस्ट ऐसे ही चला जा रहा हो रहा है, लोग बात कर रहे होते हैं, पीछे कुछ लोग को दर्शाया जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे स्टिमुलाइज हैं एक ही टाइम पे। सो ये एक डिमेंशिया एल्डरली के लिए, क्योंकि उनका कॉग्निटिव फंक्शन इफेक्ट हुआ है, तो इनके लिए ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कोई बहुत सारी चीजें एक साथ एक जगह पे हो रही है, कोई गाना बजा रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें अगर एक टाइम पे होने लग रही होती है तो फिर वो एल्डरली के लिए कभी कभार चैलेंजिंग बन जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। इसके अलावा फिजिकल बैरियर्स, हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि एल्डरली के फिजिकल एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा चेंजेस ना हो। टेबल चेयर वगैरह सारी चीजें इस तरीके से रखी जा रही हो कि वो आराम से घूम सक रहे हो। इपॉक के घरों में ये चीज का ध्यान रखा जाता है कि उनको चलने फिरने के लिए जगह मिले और वो आराम से घूम फिर सके। अगर बैरियर्स यहाँ मिलने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं उनको ब्लॉक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर के तौर पे उनके सामने आ रहा है और वो चैलेंज बन जाते हैं उनके लिए कि ये मेरे सामने क्यों है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, दीवार है या फिर दरवाजा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग उस तरीके से रखना होता है जहाँ पे वो लोग जा सके। अगर वो एक कन्फाइंड प्लेस में फंस जाते हैं तो वो अपने आप परेशान हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, फियर होने लगता है, तो उस वजह से भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स बाहर आ सकते हैं। अगर एक घर का एग्जांपल बताएं तो एल्डरली अपने कमरे में बंद है, दरवाजा बंद है, वो अकेले हैं अंदर, उनकी फिजिकल नीड, वो केपेबल अपने आप को क्या बोलते हैं संभालने के लिए, लेकिन एकदम से उनको याद नहीं आ रहा कि उनको बाहर कैसे निकलना है।
तो वो भी एक बैरियर के तौर पे वर्क करता है। टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उनको कहीं ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही। तो ये कैसे हमें पता चलेगा वो काँप रहे हैं या फिर वो स्वेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि हम उस चीज़ को, उस ट्रिगर को वहाँ से हटा सकें। और अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, नए एनवायरनमेंट में आना, उनको पता नहीं चल रही कहाँ पे है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं एकदम से सोच रहे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्टेड है। और हो सकता है उनको हॉस्पिटल लेके आए, उनको बता के लेके आए, लेकिन बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो एकदम से सोच रहे हैं अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो किसी के लिए भी वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को हमें बार बार एश्योरेंस देना पड़ता है कि हम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, रिपीट करना पड़ता है कि हम उन्हें चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, या फिर हम बाहर घूमने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रेगुलरली करनी पड़ती है। तो ये कुछ फिजिकल इरिटेंट्स है। इसके अलावा सोशल नीड्स में क्या है, चेंज इन रूटीन्स। अगर किसी एल्डरली का कोई रूटीन था सुबह से लेके शाम तक में कि वो इतने टाइम पे खाते, इतने टाइम पे नहाते हैं, अगर उस चीज़ में हम चेंज करते हैं एकदम से, तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है। तो इसलिए भी वो जैसे प्रसिद्धा ने ट्रिगर्स में बताया था कि अगर उनका रूटीन में हमारे हिसाब से करते हैं, उनका रूटीन जरूर होगा वो, लेकिन अगर उसमें वो उस टाइम पे नहीं करना चाहते तब भी वो हो सकता है। अगर उनका वो रूटीन चेंज भी किया जाए उनके मर्जी के बगैर, तब भी वो चैलेंजिंग बिहेवियर में लीड कर सकते हैं। इसके अलावा केयर गिवर इंटरेक्शन, जैसे घर पे किसी केयर गिवर को रखा हुआ है, किसी अटेंडेंट को रखा हुआ है उनका ख्याल रखने के लिए, अगर एकदम से वो चेंज हो रहा है, तब भी उनके लिए कोई एक नया पर्सन आ रहा है, वो नहीं जानते वो कौन है, वो थ्रेटन फील करते हैं कि मेरे कमरे में ये कौन आ गया है। तो हमेशा ये जरूरी है कि हम उनको बताएं कि ये कौन है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, वो एक लव और अफेक्शन के साथ वो केयर गिवर उनको हैंडल करे। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है। जब ये चीजें नहीं होती तब उनके लिए वो एक सिचुएशन, एक थ्रेटनिंग सिचुएशन जैसा बन भी सकता है और वो चैलेंजिंग बिहेवियर्स के लिए लीड कर सकता है। सो साजू ने जिस तरह से एक्सप्लेन्ड अबाउट फिजिकल एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं, उसके अलावा हमारे पास मेडिकल कंडीशन और दूसरे फिजिकल डिस्कम्फर्ट होते हैं जिसकी वजह से भी एक डिमेंशिया रेसिडेंट चैलेंजिंग बिहेवियर शो कर सकता है, जिसमें कि बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, लाइक अर्थराइटिस है या डिहाइड्रेशन है, प्रोस्टेट इशू है, सीओपीडी है। तो ये मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज की वजह से जो दिक्कतें उनको होती हैं उसको नहीं एक्सप्रेस कर पाना और उसकी वजह से जो तकलीफ वो सहते हैं उसकी वजह से भी वो लोग काफी बार चिड़चिड़े हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। एंड उसके अलावा ये मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे कि पेन होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। सो इन सब की वजह से पूरा ये इक्विलिब्रियम होता है कि दोनों मिलके ये चीजों को, और रेसिडेंट काफी जो एल्डरली होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से वो चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं एंड चैलेंजिंग बिहेवियर्स को वो शो करते हैं। दूसरा होता है साइकेट्रिक कंडीशंस, एंड ड्यू टू सम ऑफ द साइकेट्रिक कंडीशन जो एल्डरली होते हैं वो ऐसा बिहेवियरल डिस्टर्बेंस की वजह से वो चैलेंजिंग बिहेवियर शो करते हैं, जिसमें आता है डिप्रेशन में वो काफी उदास रहते हैं, अकेले रहने लगते हैं। डेलीरियम एक स्टेट होता है जिसमें जो डिस्टर्बेंस होता है वो उसकी वजह से एल्डरली कुछ और ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जो सोचते हैं और उनकी सोच में वो काफी कंफ्यूज्ड होते हैं, उनका जो अवेयरनेस एनवायरनमेंट के लिए होता है उसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है साइकोसिस में डिल्यूशन एंड हैलुसिनेशन। तो डिल्यूशन एंड हैलुसिनेशन में डिल्यूशन इज अ फॉल्स बिलीफ, जो उनको लगता है कि ये चीज है पर वो होता नहीं है। एंड हैलुसिनेशन में होता है कि वो कुछ चीजें देखते और सुनते हैं, उनके लिए वो सही होगा लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। वहां पे उनको दिखेगा कि बाहर जंगल में उनको लगेगा कि बाहर जंगल है और हाथी है, लेकिन ऐसी चीजें होती नहीं है। उसके अलावा एंजाइटी एंड स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, ये कुछ कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स एल्डरलीज में वो दिखाते हैं। सो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं सिम्टम्स या फिर कॉग्निटिव चेंजेस की वजह से क्या क्या चीजें होती है। मेमोरी लॉस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, डिमेंशिया का नाम सुनते ही सब लोग सोचते हैं मेमोरी अफेक्ट होता है, जस्ट राइट। डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शंस, ये भी डिमेंशिया का ही एक पार्ट है और इसी वजह से सारी चीजें लीड करते हैं। अब इसके अलावा क्या, हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में काफी डिस्कस किया पिछले स्लाइड्स में। इसके अलावा विजुअल स्पेशियल फंक्शन। सो अगर मान लीजिए एक वाइट कलर का टेबल है, उसके ऊपर आपने एक वाइट कलर का प्लेट रखा है और उसके ऊपर आपने खाना रख दिया है, तो एल्डरली के लिए, और मान लीजिए पास्ता है वाइट कलर का,
तो एलएलई के लिए उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें वाइट है और कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग इस चीज का काफी ख्याल रखते हैं, और एज ए केयर गिवर हमें ये हमेशा देखना है कि हम उनको ऐसी चीजें दे रहे हैं जो उनके लिए समझने के लिए आसान हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना कर दे। तो टेबल का कलर और जो कटलरी है, जो प्लेट्स हैं, हम उनका कलर भी वैसे ही रखें जो उसके साथ मेल ना कर रहा हो, अलग दिख रहा हो, और खाना उसी तरीके से प्रेजेंट करें जिस हिसाब से उनको पता चले कि ये क्या है। और काफी बार हमें बता के भी देना होगा कि हमने क्या खाना सर्व किया उनको, रोटी है, चावल है, सब्जी है, जो भी चीज है वो, और ताकि उनको जो देख रहे हैं और जो डिस्टेंस वगैरह है उन सारी चीजों के बीच में कंफ्यूजन ना हो। तो ब्रेन का फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जो चीजें हम लोग आसानी से करते हैं आज, ग्लास को उठाना, बॉटल को उठाना, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मुश्किल होने लगती है। ग्लास का डिस्टेंस पता नहीं कर पाना, ब्रेन हमारा इतना केपेबल बन जाता है जहाँ पे ये सारी चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आपके ब्रेन के सेल्स या फिर आपका ब्रेन मतलब कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन करता है, तो ये सिंपल टास्क भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये सारी चीजें करने में काफी दिक्कतें आती है। रिकग्निशन, लोगों को ना पहचान पाना, चीजों को ना पहचान पाना, कुर्सी को टेबल बोलना, टेबल को घड़ी बोलना, ये सारी चीजें कॉमन है। परफॉर्मिंग मोटर एक्टिविटीज, जो फाइन मोटर एक्टिविटीज हैं, पेपर उठाना, पेन उठाना, चावल वगैरह उठाना, मतलब ये ग्रेन्स को सेपरेट करना, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स बन जाती है। इनिशिएटिंग और एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंशियल टास्क, जैसे हमें खाना खाना है, खाना खाने के लिए हमें पहले प्लेट लेना है, प्लेट में सब्जी डालनी है, रोटी लेनी है, चावल लेना है, रोटी को तोड़ के सब्जी में डुबा के या फिर दाल में डुबा के मुंह तक लेके जाना है। तो ये सारी चीजें सीक्वेंशियल है, ये एक के बाद एक प्रोसेस है जो हम बचपन से ही करते हैं और हमें पता है, और हमें किसी को भी हमें बता के देने की जरूरत नहीं कैसे करना है। लेकिन इन कॉग्निटिव डिक्लाइन में ये सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। जो सीक्वेंशियली हम करते हैं वो सारी चीजें उन डिमेंशिया एलएलई के लिए काफी चैलेंजिंग बन जाता है। और सिंपल एग्जांपल नहाने का भी बता सकते कि कपड़े उतार के नहाना है, वो कभी का इस तरीके से इफेक्ट होता है कि वो कपड़े पहन के ही नहाना। सो जो सीक्वेंशियल टास्क है वो काफी चैलेंजिंग होता है। सो ये कॉग्निटिव डोमेन्स थे जो हम लोगों ने रिकैप किया सिम्टम्स के तौर। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट हैज इन, कैसे हम उन सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं। एक अप्रोच जो हम लोग फॉलो करते हैं जो कि है पर्सन सेंटर्ड केयर। अब एज ए फैमिली हर कोई सोचेगा कि मैं अपने पेरेंट्स को तो वैसे ट्रीट करूंगा जैसे मैं उनको अभी तक ट्रीट करते हैं, मैं तो उनसे वैसे बात करूंगा जैसे मैं उनके साथ हमेशा से ही बात करते हैं, मैं आज उनके साथ एकदम से अलग कैसे बनूं। ये एक अप्रोच ऐसा है जो काफी मदद करता है लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। अगर एक बच्चे के तौर पे, अगर एक केयर गिवर के तौर पे, जो उनके फैमिली मेंबर है उनके तौर पे अगर सोचोगे तो काफी सारी चीजें जो हम देख नहीं पाते, जो हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम आउट ऑफ द बॉक्स एक बाहर के पर्सन की तरह आके देखते हैं तो हमें काफी सारी चीजों पे समझ आने लगता है, काफी सारी चीजों के लिए हमें अंडरस्टैंड होता है। अगर हमारा फोकस उनके ऊपर एक फादर की तरह, एक मदर की तरह, एक ब्रदर या सिस्टर की तरह नहीं रहता है और एज ए पर्सन रहता है कि इनको एज ए पर्सन क्या चाहिए था, क्योंकि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर को तो हम जानते हैं, हमें पता है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं तो हमें उनको एज ए पर्सन पूछना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, हम आपकी कैसी मदद करें। सो ये जब करते हैं तो उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं एलएलई आपको बता पाते हैं कि उनको क्या चाहिए होता है, क्या दिक्कत आ रही है। काफी बार होता है कि हम अपने पेरेंट्स को या फिर हमारे लव्ड वंस को इतना अच्छे से जानते हैं कि हम उनसे पूछने का नहीं सोचते। तो ये जरूरी है कि हम उनको पूछें एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजिंग डिमेंशिया। दूसरा, क्लूज और सोर्सेस ऑफ दिस और अनमेट नीड्स, इन सारी चीजों को मतलब सुनना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, डायरेक्टली उनके लिए बोलना क्या बोलते हैं, मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। तो हमें देख सुन के समझना पड़ता है, वो क्लूज ढूंढने पड़ते हैं कि भाई ये मतलब इस चीज का सोर्स क्या है, डिस्ट्रेस या फिर अनमेट नीड्स के ट्रिगर्स क्या है, उस सारी चीजों को समझना पड़ता है एज अ सेकेंड स्टेप। अवॉइड सेइंग नो, आर्ग्यूइंग और डिसएग्री। अब जब हम ये बोल रहे तो वो कहेंगे कि हमें बाहर जाना है, हमें घूमने जाना है, तो हम उन्हें मना नहीं करेंगे क्या? नहीं, हम उन्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको कारण देंगे जो उनके लिए लॉजिकल होगा कि अभी बारिश हो रही है, या फिर अभी धूप ज्यादा है, या फिर अभी गाड़ी पंक्चर है, हम थोड़ी देर में गाड़ी ठीक हो जाएगी तो फिर हम चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग पावर भी नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग उनको हमें लॉजिकल आंसर्स देने होते हैं। अगर हम उनको सीधा मना कर देते, रजनाटी फॉर एग्जांपल, हमें एक एल्डरली विद डिमेंशिया बताते हैं कि मुझे जाना है,
अभी वो सिचुएशन ही है जहाँ पे वो जा सकते हैं, पर हम उनको अगर बोलते हैं उनको समझ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए नहीं समझने के लिए तैयार होंगे। वो सोचेंगे, वो कहेंगे मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं तो कुछ नहीं है, हम चलो चल सकते हैं। हमें उनको इस तरीके से लॉजिकल आंसर देना है कि वो समझे कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, जैसे कि गाड़ी खराब है या फिर मौसम सही नहीं है या फिर हम शाम को जाएंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम जैसे मैं टाइम निकाल पाती हूँ या फिर मैं बस एक काम खत्म कर रही हूँ 10 मिनट में हम चलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उस पॉइंट से हम थोड़ा जस्टिफाइड रीजन, एग्जैक्टली जस्टिफाइड रीजन, वो इसे हम थेराप्यूटिक लाइंग नहीं यूज कर, मतलब यूज करना चाह रहा मैं, लेकिन थेराप्यूटिक वे से अगर हम देखें तो उनके रियलिटी में हम एंटर करते हैं। हमारा रियलिटी फैक्ट्स है, फैक्ट्स बेसिस पे है, लेकिन उनके लिए वो चीज एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो हम उनको वो चीजें बताते हैं जो उनके लिए एक्सेप्ट करने के लिए आसानी हो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, सिंपल चीजें रखें उस तरीके से। और अगर हम ये करते हैं तो वो एक ट्रिगर के तौर पे बन जाता है, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं, कॉम्पैक्टिवनेस हो जाते हैं, मतलब धक्का मार देते हैं, फिजिकली अब्यूज मतलब हार्म करना शुरू करते हैं या फिर वॉकआउट करते हैं, चले निकल जाते हैं बाहर एकदम से। तो ये अवॉइड करने के लिए हमें उनको प्यार से अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। ऑफर टू हेल्प इन वेज दैट रिड्यूस डिस्ट्रेस और अनमेट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी। अब जैसे मैंने कहा कि उनको बाहर जाना, तो हम लोग इस चीज को फुलफिल करना चाहेंगे पर उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। उनको अकेला नहीं भेजेंगे, उनके साथ किसी केयरगिवर को रखेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे, उनको सेफली किसी गाड़ी में ट्रांसफर करेंगे, वहां ले जाके हम उनको थोड़ा टहल के वापस आएंगे। अब जैसे कोविड का सिचुएशन, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उनको भीड़ वाली जगह पे नहीं लेके जाए, उनको शांत और ज्यादा क्राउडेड ना हो वैसी जगह पे लेके जाए। जैसे कोई कैफे हो गया जो भीड़ वाला नहीं है, कभी कभी लोग जाते हैं, और ऐसे टाइम पे लेके जाए जहाँ पे लोग आते ना हो, तो उनका एक नीड भी हम फुलफिल कर रहे हैं बाहर जाने का। पार्क में लेके गए, सो हमने उनको मना नहीं किया, हमने उनका नीड फुलफिल किया और उनकी सेफ्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये हमेशा जरूरी होता है कि हम उनका ख्याल रखें और उनको सेफली सारी चीजों के लिए हाँ करें। जिन चीजों के लिए मना कर सकते हैं हमको उन्हें सेफली मना करना है। और क्या बोलते हैं, मना एज इन नहीं करना है, लेकिन उनको डायरेक्शन देना है कि हम करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे या तो बाद में करेंगे या फिर कल के लिए प्लान करेंगे, आज ये दिक्कत है वगैरह करके उतना टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्टेड है। तो वो कहीं ना कहीं हम उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं कि उनको थोड़ी देर बाद शायद वो याद ना हो, या तो हम लोगों ने उस टाइम पे उनके जो चैलेंजिंग बिहेवियर या फिर वो रेस्टलेसनेस को एड्रेस करते हैं। सो ये एज ए पर्सन अगर हम उनको देखते हैं तो फुलफिल कर पाते हैं मोस्टली, आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचने। अच्छा, if they are not behaving in a normal way, so sometimes caregiver also become annoyed with it. In that case, yes, it is very challenging for the caregiver to maintain. It is very challenging. How long a person can control? And again, जब फैमिली मेंबर्स और एक सिंगल कैरगिवर किसी डिमेंशिया एल्डरली का ख्याल रखता है, तो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उनका फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीज और उनका रूटीन सब कुछ ही इफेक्ट होता है, और उनका उन्हें भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजों से रूबरू होना पड़ जाता है, और उनका हेल्थ भी इफेक्ट होने लगता है। सो इस वजह से हम लोग एज एन असिस्टेड लिविंग होम, इमोआ एज अ होम केयर प्रोवाइडर, हम लोग वहाँ पे आते हैं जहाँ पे हम लोग अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं और हम लोग शफल करते हैं लोगों को, ताकि एक केयर गिवर एक टाइम पे उनके मतलब कंटिन्यूस उनके पास नहीं रहे। वो बर्नआउट जो होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो इक्वली एक टीम के अंदर डिवाइड हो सके और मैनेज किया जा सके। अच्छा साजू, I'd like to ask you that dementia only elderly, after certain age only it comes, not in जैसे 40, 50, 35 like so. आजकल आंटी यंग एल्डरलीज को भी होने लगता है। स्टडीज चल रही है उसके लिए, पर्टिकुलरली ब्रेन चेंजेस ही हैं, लेकिन इतना जल्दी क्यों होना या फिर लेट ही होगा, इस चीज पे अभी प्रॉपर वो नहीं है, लेकिन मोस्टली एल्डरलीज को ही होता है। लेकिन यंग एल्डरलीज में भी देखने को मिलता है, 50s and 60s है। So actually in young age they are busy, so it is due to depression and those who are not having any work to do, they get it. So in elderly people suffer, that is why I think. That is one of the yes, Auntie.
So I think we will take all this question answer session aunty ek baar ye khatam ho jayega, just we are going to finish this off. So as Saju has mentioned in his slides ki every behavior has its meaning. So all the elderlies जो exhibit करते हैं कोई ना कोई behavior, गुस्सा करना या फिर घूमना इधर से उधर, उनके पीछे कुछ ना कुछ reason होता है. और ये सिर्फ dementia resident के साथ या dementia elderly के साथ में नहीं है, any elderly if there is any issue तो वो कहीं ना कहीं उनके नेचर में वो चीजें या बिहेवियर में पता चलेगा. घर पे भी अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक या लड़ाई हो गई है तो वो गुस्सा दिखता है चेहरे पे. सो वैसे ही सेम होता है. What we have to do is, as Saju has mentioned, that we have to look for reason कि क्या चीज है, किसकी वजह से. वो जो भी हमने पहले आपको बताए हैं unmet needs, उनमें से कोई ना कोई एक हो सकता है. तो जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे यहाँ एक एल्डरली थे, साजू के घर पे ही थे. साजू के घर पे एक एल्डरली आंटी है. सो उनका बीच में एजिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड दे वर लाइक ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि क्या हुआ है. तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, तो हमें वो हेड टू टू असेसमेंट भी करना पड़ता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं कुछ दांत में दर्द तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है. लास्ट में जो पता चला है, वो इन लोगों ने जो रीजन पता किया था वो ये था कि उनको गर्मी लग रही थी. एसी ऑन करने के बाद शी वाज ओके, बट वो बता नहीं पा रही थी कि मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि वो वोकैबुलरी चली गई है. तो वो बोल रही होंगी, लेकिन उनका बोलना होगा कि पानी खिला दो या कबर्ड ला दो, कबर्ड चला दो, लाइट ऑन कर दो, लेकिन एसी ऑन कर दो वो नहीं बोल पा रही थी. सो दे आइडेंटिफाइड इट, और जैसे ही वो एसी ऑन किया तो शी वाज ओके. सो इसके लिए वी हैव टू एंटर इनटू देयर वर्ल्ड. उनकी तरफ से सोचना पड़ता है कि अच्छा ये यहाँ बैठी हुई हैं तो इनको क्या चीजें हो सकती हैं जो कमी हो रही है. तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा यहाँ बैठे हुए तो पंखा चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, एंड दे ऑन द एसी एंड शी वाज कंप्लीटली फाइन. एंड वी आर एज ए केयर गिवर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर नीड्स. तो हम उनको अच्छे से जानते हैं, तो हमें मालूम है कि उनको क्या चीज किस टाइम पे देना जरूरी है और जरूरत पड़ सकती है. बट कुछ चीजें हमें ऐसे ही डिस्कवर करनी पड़ती है, इन्वेंट करनी पड़ती है कि अच्छा आज रोज तो पोहा खाती थी लेकिन आज पोहा नहीं खा रही, इसका मतलब वी हैव टू चेंज द मील. तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है विच वी हैव टू टेक केयर. एंड द अदर थिंग इज कि अवॉइड अननेसेसरी मेडिकेशंस. जब तक आपको लग रहा है कि वो आप उनकी केयर, उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके उसकी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, मेडिकेशंस अवॉइड करिए. क्योंकि मेडिकेशन के या दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं. ड्राई माउथ हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, या फिर नींद ज्यादा आने लगती है, नींद की वजह से गिर जाते हैं, फिर चोट लग जाता है. तो जहां तक हो सकता है वो प्लीज अवॉइड करिए. बट आई कैन अंडरस्टैंड कि घर में केयर करना और एक इंस्टीट्यूट में केयर करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि हम एक पूरी टीम होती है और घर पे सिर्फ केयर गिवर या एक केयर अटेंडेंट होता है. सो इट इज एंटायरली डिफरेंट. बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि मेडिकेशन अननेसेसरी वी डोंट हैव टू गिव. सो सॉरी, द स्लाइड इज स्टक. गिव मी अ सेकंड प्लीज. या सो अब मैं आप लोगों को विल गिव यू एन एग्जांपल जो हम लोग यूज कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं घर पे. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. एक एल्डरली है, घर पे है, अपनी बेटी से बोलते हैं कि मुझे बैंक जाना है. पहले सिनारियो में बेटी बोलती है कि नहीं बैंक क्यों जाना है आपको, पैसे क्यों निकालने हैं आपको, अभी तो आपने पैसे निकाले थे. अब एल्डरली का क्या है कि वो गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे कि नहीं मुझे तो जाना है. अब यहाँ पे बेटी को क्या हुआ, बेटी बोल रही है, बेटी के दिमाग में एकदम से आया कि ओ ये तो इनको कुछ साइकेट्रिक इशू हो गया है, इनको रिव्यू की जरूरत है, इनको अभी हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि ये तो गाली दे रहे हैं, इन्होंने तो कभी गाली ही नहीं दी थी. अब ये एक कंडीशन हो गया जहाँ पे वो तुरंत इमीडिएटली फिर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट मेडिकेशन की, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन हो जाती है. अब सेकंड सिनेरियो है जहाँ पे घर वालों को पता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है और क्या चीज हो सकती है. डिमेंशिया रेसिडेंट है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है. अभी उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, वो 10 मिनट बाद भूल जाएंगे. तो उस चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे. तो अगर कोई एल्डरली है जो गुस्सा कर रहे हैं या कहीं जाने की जिद कर रहे हैं, जैसे कि साजू ने पहले बताया हुआ था, अब यहाँ पे बेटी से जैसे ही फादर ने बोला कि मुझे बैंक जाना है, तो डॉटर ने यहाँ पे समझा दिया. कई चीजें हो सकती हैं. एक चीज है कि ड्राइवर अभी आएंगे, जैसे ही आएंगे हम आपको ले जाएंगे. दूसरी चीज है कि आज तो बैंक बंद है, कोई त्योहार है और बैंक बंद है. तीसरा बाहर कर्फ्यू है, या फिर गाड़ी पंचर है. कहने में लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बट ये थेरापेटिक झूठ होता है जो हम बोल सकते हैं एल्डरलीज के साथ में जिनको डिमेंशिया है. यहाँ पे हमने उनको बोल दिया, हमने बोला जैसी गाड़ी आएगी हम आपको बाहर ले जाएंगे, चलिए अभी रूम में चल के आराम कर लेते हैं, मैं भी आपके साथ बैठती हूँ.
मैं उनको वापस रूम में ले गई, थोड़ी देर वो काम रहे, उसके बाद फिर वो भूल गए, उसके बाद हमने टीवी लगा दिया, वो टीवी देखने लगे, या हमने म्यूजिक लगा दिया, वो म्यूजिक सुनने लगे। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम ऐसी चीजें हम कर सकते हैं अगर कोई चैलेंजिंग बिहेवियर आ रहा है, या फिर वो कहीं जाने की जिद कर रहे हैं, कुछ चीज हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में एक्सपीरियंस है, फैसिलिटीज में एल्डरलीज होते हैं जिन्होंने चाय पिया होता है, लेकिन उसके बाद भी वो रिपीट चाय मांगते रहते हैं, कई बार चाय मांगते हैं, 3 बार 4 बार चाय मांगते हैं, और चाय नहीं देते हैं तो फिर वो बहुत गुस्सा कर देते हैं। तो हम उनको चाय दे सकते हैं, लेकिन हर बार भर भर के हम अगर कप देंगे तो वो उनके लिए भी हार्मफुल होगा। 1 घंटे में अगर 4 बार चाय पी रहे हैं, अब मुझे मालूम है कि एल्डरली जो मेरे अंकल हैं वो मुझसे 4 बार चाय मांगेंगे, तो मैं हर बार क्वांटिटी कम कर दूंगी, उनको आधा कप दूंगी या आधे कप से ज्यादा दूंगी। तो मैं उनका डिमांड पूरा कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको चाय ज्यादा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर चाय में शक्कर के साथ जाएगा तो उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसको हम समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से हम अपनी खुद की हम आइडियाज बना सकते हैं, अपनी खुद की स्टोरी बना के उनको काम कर सकते हैं। सो ओवर टू यू साजू। सो टिप्स में पहले जाएं, उससे पहले एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे हमने बताया कि आपको कैसे उस चीज को हम मना ना करके उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, सॉरी उनको ये बता सकते हैं थेरेप्यूटिक लाइन जो बताया पुस्तक में। लेकिन हम जब ये कर रहे हैं, उसी के साथ हमें एक और चीज करना है, जो है उनको डाइवर्ट करना, उन्हें किसी और चीज में एंगेज करना, टीवी देखना या फिर क्या बोलते हैं किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, किसी और चीज में लगाना। क्योंकि जब उनका माइंड उस डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाता है तो फिर आसानी से वो काम मतलब उस चीज के बारे में सोचना भूल जाएंगे। अगर हमने बोल के छोड़ दिया तो हो सकता है वो उसी चीज को बार बार सोचते रहे, उसे एक पर्टिकुलर चीज पे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का फायदा हम उठा सकते हैं, लेकिन विद डाइवर्जन अगर हम उस चीज को सोचते कि नहीं वो थोड़ी देर में भूल जाएंगे अपने आप, तो काफी बार होता है कि वो काफी देर तक रहता है वो चीज। हो सकता है उनको वो नीड है जो वो उस पर अटैच होकर बैठते हैं। तो फिर हमें कहीं ना कहीं डिफरेंट मेथड्स यूज करना है जहाँ पे डाइवर्जन इज इजी। वापस टिप्स में आते हैं तो यही सारी चीजें हम रिपीट कर रहे हैं, हम लोग ने देखा वही सारी चीजें, और मोस्ट ऑफ यू एज कैरेगिवर्स ये अपने घर पे फॉलो करते होंगे। तो हम बस हाईलाइट कर रहे हैं कुछ मेजर चीजें। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सिचुएशंस एंड नीड्स। सो हमने जो चीजें बताई हैं ये सब सारी चीजें अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से जो हम लोग ने यूज किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा जो एग्जांपल है वो सेम तरीके से वो दूसरे एल्डरली के लिए यूज हो सकता है हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़े, हो सकता है हमें कुछ नया ट्राई करना पड़ता है। हमेशा हमारा स्कोप जो है वो ब्रॉड रखना होता है, जहाँ पे हम डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं। पीपल चेंज ओवर टाइम, नीड्स एंड बिहेवियर्स टू, व्हिच इज कॉमन। सम रिस्पॉन्सेज वर्क वन डे नॉट द नेक्स्ट डे। वही सेम चीज आज बोल दिया कि कर्फ्यू है, आज मान लिया, लेकिन कल फिर से शायद कर्फ्यू नहीं काम है, कुछ और काम है, तो वो चेंज करते रहना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। सम रिस्पॉन्सेज वर्क फॉर वन केयरगिवर बट नॉट अनदर। एज केयरगिवर्स मैंने और प्रसिद्धा ने काफी सारे एग्जांपल्स बताए, काफी सारे सिचुएशंस बताए या फिर टिप्स बताए, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे केयरगिवर के लिए ये सेम चीज काम करे। हो सकता है कुछ अलग तरीका यूज करना पड़े, कुछ नई चीजें ट्राई करनी पड़े। तो हमेशा नया ट्राई करते रहना चाहिए। Responses must be tailored to the individual and modified over time. So उस पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल एल्डरली के ऊपर फोकस करते हुए रिस्पॉन्स क्रिएट करना होगा। अगर किसी एल्डरली को पता है कि उनके पास गाड़ी है, तो फिर उनको हमें और वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। अगर उनको बोलेंगे कि नहीं हमने टैक्सी मंगाया, तो वो सीधा ये बोलेंगे कि मेरी तो गाड़ी है, आप मेरी गाड़ी ले चलो, हम उसमें चलते हैं। तो उस इंडिविजुअल के क्या बोलते हैं सराउंड एनवायरनमेंट या फिर उनके डायरेक्ट रिलेटेड चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हमें वो डील करना होगा। सिट डाउन, कम्युनिकेट एट हाई लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एल्डरली अगर वो चेयर पे बैठे हैं, अगर व्हील चेयर बाउंड या फिर नॉर्मल भी बैठे हैं, अगर उनको किसी को ऊपर देख के गर्दन ऊपर करके किसी से बात करना पड़ रहा है, वो खड़े हैं, तो वो काफी इरिटेटिंग, मतलब काफी स्ट्रेन पड़ता है उनकी फिजिकल बॉडी पे, उनके आंख पे, क्या बोलते हैं वो देखना समझ, मतलब वैसे करके। एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीका होता है कि आपने कुर्सी लेके उनके सामने बैठे या फिर आप घुटनों पे उनके सामने आई लेवल पे आके बैठ के बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जेस्चर है जो हम दिखा रहे हैं, एक कंफर्टिंग वे है उनको उनसे बात करने का। तो उनके लिए भी वो कंफर्टेबल है वो तरीका, और प्लस उनको कहीं ना कहीं वो फीलिंग हम दे रहे हैं कि उनका कोई सुन रहा है और अटेंटिवली उनके पास बैठा है। कनेक्ट विद स्माइल्स एंड ह्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको कहीं भगवान ने हंस के बात करने की खूबी दी हुई है इंसानों में।
तो हमें उसका क्या बोलते हैं बखूबी फायदा उठाना चाहिए और हर किसी से हंस के खेल के बात करना चाहिए। खास करके डिमेंशिया एल्डरली जो जो ऑलरेडी परेशान होंगे तो उनके हमारे मुंह पे एक हंसी लेके हम उनके पास जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करें। रीअश्योर विद सिंपल वर्ड्स, कंफर्ट विद टच, जो मैंने पहले बताया जेस्चर और सिंपल से सिंपल वर्ड्स एक लाइन में अगर समझा सकते हैं तो बेटर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। यूज विजुअल एंड जेस्चरल क्यूज, हमें दिखाना भी पड़ता है, हम बोल रहे होंगे लेकिन हमें कभी कभी दिखाना भी पड़ता है कि खाना सामने रखा है, खाना ये है, प्लेट है, ग्लास है, जो भी चीज़ है, और पीठ पे हाथ रख के या फिर थपथपा के या फिर क्या बोलते हैं उनका हाथ पकड़ के, ये सारी चीज़ें हमें अफेक्शन जताना पड़ेगा, खास करके डिमेंशिया एल्डरली के। धीरे से बात करो, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। Be patient, give adequate time to process and respond. Avoid using negative tone or words. So patience की है हर केयर गिवर के लिए कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो, उसका मैक्सिमम आपको रखना पड़ेगा। आपको दिन में 10 बार 100 बार एक ही चीज बार बार पूछी जा सकती हो, पेशेंटली उस चीज को जवाब देना ही उनके वेलबींग के लिए अच्छा है, एल्डरली के लिए। और हमें समझना होगा कि हमें ये क्यों करना पड़ रहा है। अगर हमारा गोल सेट है, अगर हमारा माइंड फ्रेम एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में है कि हमें उनके वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए ये चीजें करनी है, तो हम ये चीजें आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं तो फिर हम डाइवर्ट हो सकते हैं। हम अच्छे केयर गिवर्स से डाइवर्ट होके एक नॉर्मल केयर गिविंग ही मतलब उनका चल रहा है तो चलने देते हैं, उस तरीके से भी जा सकते हैं। लेकिन हम सबको ही एक अच्छा केयर गिवर बनना अपने लाइफ में, अपने लव्ड वंस के लिए, राइट। सो ये कुछ टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। इसके अलावा प्रसूता, अच्छा, they take training also, caregivers? yes, I mean जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हैं, जो होम केयर सर्विसेज पे हैं, उन सबको ही जब डिमेंशिया एल्डर्स के पास भेजना होता है या फिर उनका केयर करना होता है तो उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर कोई पहले से ही उस चीज को समझ नहीं रहा होता है और ना ही हर किसी के लिए नया होता है। जैसे इपॉक में आने से पहले मेरे लिए भी डिमेंशिया सिर्फ एक नॉलेज था कि हाँ एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, भूलना होता है, लेकिन इतनी सारी चीजें होती है। मुझे भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और किसी ने मुझे बताया तभी जाके पता चला है। तो ये हर किसी के लिए, जब वो नया नया आते तो हमें उनको भी ट्रेन करना पड़ता है, उन्हें भी काउंसिल करना पड़ता है कि आपको ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी, ऐसी चीजें भी फेस करने को मिलेगा, जैसे गाली सुनने को मिल सकता है, मार खाने को मिल सकता है। तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे, आप उस चीज को कैसे पॉजिटिवली लोगे और कैसे अपना केयर में कमी नहीं ले आओगे, उन सारी चीजों का हमें ट्रेनिंग देना पड़ता है। और काफी बार फैमिलीज को भी ऐसे ट्रेनिंग्स और ऐसे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है जहाँ पे वो इन सारी चीजों को समझे और फिर अपने एल्डरली के लिए केयर करता है। तो ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें ऐसे पेशेंट को रख सकते हैं? हाँ, ऐसा ही है। My sister-in-law, she was also having, so she was not able to identify her daughter, son-in-law, anyone. So it was very difficult to keep her at home. So we had given her to asylum. Oh, okay. Saju, I think we can go directly to the question session. Yes, Yeah. yes. ऐसे asylum कहाँ पे होते हैं? सुदेश आंटी का सवाल था, राइट? ऐसे कोई इंस्टीट्यूट तो सुदेश आंटी, प्रसिता और मैं, हम लोग इपॉक एल्डर केयर से बिलोंग करते हैं, वर्क करते हैं। वी आर एन असिस्टेड लिविंग होम एंड डिमेंशिया केयर स्पेशलिस्ट। सो हम एल्डर्स विद हु नीड्स असिस्टेंस इन देयर लाइफ एंड elders with dementia who are in their moderate to advanced stages and even mild stages, उन लोगों का केयर करते हैं। So we are one of the institutions that provide this care. We have 2 branches in Gurgaon and 1 in Pune. So हम फिलहाल 2 states में वर्क करते हैं। गुड़गांव में। अच्छा, एड्रेस आप यहाँ भेज दोगे? हम चैट बॉक्स में डाल देते हैं। ओके। अच्छा, मतलब वहाँ रेजिडेंशियल है मतलब? Yes. So हम लोग फोकस करते हैं कि एक होमली एनवायरनमेंट हम दे सकें। ओके। तो मेडिसिन वगैरह फिर प्रोवाइड कर देते हैं मतलब ऐसे पेशेंट को? सारी चीजें करते हैं आंटी। अच्छा। सो आप मानिए आप अपने घर पे किसी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे ख्याल रखते हैं। बस हम ट्रेंड होते हैं, हमारा टीम ट्रेंड होता है और हम टीम में काम करते हैं। तो
ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इफेक्टिवली केयर दे पा रहे हो। ओके, चलो एड्रेस प्लीज डाल दो यहाँ पे। You तो ये see, डिमेंशिया का पेशेंट होता है वो ठीक भी हो जाता है बाद में, मतलब आपके इलाज से या आपकी केयर से? एंटी डिमेंशिया अगर एक बार हो गया है तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता, उसकी reverse कोई नहीं। ट्रीटमेंट नहीं है। बट उसमें 7 स्टेजेस होते हैं, 7 स्टेजेस होते हैं, तो वो हमारा मेन एम रहता है कि वो स्टेजेस को रोके और स्लो डाउन कर दे उसका पेस। बस ये है कि हम दवाइयाँ मेडिसिन तो आप सारी कम कह रहे हैं कि कम देनी चाहिए, ये देना चाहिए, तो फिर कैसे ठीक मेडिकेशन होगा? डिमेंशिया में कुछ इफेक्ट नहीं करता। हम डिमेंशिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं क्योंकि डिमेंशिया का कोई ट्रीटमेंट बना ही नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, कहीं नहीं बना। केयर ही है ना? हाँ जी, इसका सिर्फ सिर्फ प्रॉपर केयर है। बस ये है कि एजिटेशन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वो सेल्फ हार्म कर सकते हैं, खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, गिर सकते हैं, तब हम मेडिकेशन की हेल्प लेते हैं। लेकिन हमारा मेन रहता है कि अगर वो मेडिकेशन हमने स्टार्ट भी किया तो हम उसको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं जैसे जैसे वो ठीक होते हैं। एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनका तो इस एक्सट्रीम तक बढ़ गया है कि मुंह में खाना डालते हैं ना तो जी। दिमाग कमांड देता है ना हमने चबाना है, तभी तो आदमी चबाता है, और वो उनको मालूम ही नहीं। फिर क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे को जैसे करते हैं उसको मिक्सी में करके फिर स्पून से ऐसे ऐसे डालते हैं, वो भी फिर ऐसे करके वो ताकि लेट के, जो एक अटेंडेंट नर्स रखी हुई है वो ही सारी केयर करती है, उनको कुछ मालूम नहीं वॉशरूम जाना है क्या करना है। कभी कभी तो ऐसे ही भाव आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल yours दिमाग is काम not ही नहीं करता। asylum. Yours is not asylum. तो किरण आंटी वो तो बिल्कुल लास्ट स्टेज जो होते हैं उसमें ये चीजें हाँ होती वही हैं। है, बिल्कुल इस समय बहुत और, हालत खराब है। तो हाँ, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा पेशेंट जो हमने आपको दिया है वो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब या फिर वो डेथ होएगी जब ही आएगा हमारे पास? नहीं, तो आपको ईपॉक में क्या प्रैक्टिस होता है कि हर हफ्ते आपके पास एक डिटेल्ड ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने क्या क्या किया है पूरे लास्ट हफ्ते में, क्या खाया पिया है, उन्होंने क्या एक्टिविटीज की है और क्या चेंजेस है, उनके हेल्थ स्टेटस का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको हर हफ्ते एक प्रॉपर आपको ईमेल आता है, तो हर हफ्ते मालूम चलता है। इन बिटवीन अगर कभी वो बीमार हो गए या कोई डॉक्टर का रिव्यू करवाया है तो वो भी हम आपको फोन पे और ईमेल पे इन्फॉर्म करते हैं। मिल तो सकते हैं हम अपने पेशेंट से? हाँ जी, मिल सकते हैं। बस कोविड की वजह से थोड़ा सा हमने रिस्ट्रिक्शंस किया था, लेकिन अभी उसको ओपन किया हुआ है। और बिस्नार, ये बताइए कि इंडिया में क्या परसेंटेज है जो अपना डिमेंशिया के एल्डर्स हो जाते हैं? इंडिया में अभी 4.6 जो मैंने लास्ट देखा था 4.6 करोड़ कुछ लोग थे जो अफेक्टेड थे, जो लास्ट रिसर्च हुआ था। बट इंडिया में अब जस्ट जाके रिसर्च शुरू हुआ है क्योंकि इतना लोगों में अवेयरनेस नहीं था। नाउ लाइक गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स नॉर्मल जनता के लिए। जैसे अभी ये मंथ पूरा डिमेंशिया अवेयरनेस है, हम लोग खुद भी काफी प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें हमारा मेन एम ईपॉक को दर्शाना नहीं होता है, बट वी रियली वांट टू हेल्प एल्डरलीज जो डिमेंशिया से सफर कर रहे हैं। सो ये एक ग्लोबल डिसीज होता जा रहा है डिमेंशिया, और अगर हमें पता नहीं रहेगा तो इसका केयर भी नहीं हो पाएगा। और अभी हमने थोड़ी अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज का पता चल जाए थोड़ा। श्योर, वो हम पता कर सकते हैं। Sita, I want to ask one question. जी, Should I ask? या Yeah. That is, if a patient is not behaving normally, it's difficult to keep her. She's not able to identify any relative and she's not behaving in a proper. So what you prefer to give her in asylum or in the centers you all are running, or keep it at home? Because at home also, see, nowadays everybody is working, the girls are also working. So it is not safe to keep her alone at home like that with some helping this thing. So what you suggest? So auntie, what I suggest is that asylum is not the answer, because asylum is not for neurological illness, और dementia जो है वो neurological disease है। So इसके लिए you can take care of the elder either in home, लेकिन आपके पास care होना चाहिए, care attendant होने चाहिए जो trained हैं। अगर नहीं हो पाता है so you have to take help of the organizations जो dementia residents की care करते हैं, जो उनको admit करते हैं अपने पास में और उनका
हर टाइप से उनका केयर करते हैं. सो वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डिमेंशिया का केयर करते हैं, जो जैसे ईपॉक है, सो ईपॉक डिमेंशिया का केयर करता है, अदरवाइज उनके जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है, उनके फिजिकल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, इन सब चीजों को भी फुलफिल करता है. पर उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक्स तो नहीं देते ना? नहीं, इस इलेक्ट्रिक शॉक जो होते हैं वो बहुत पुराने जमाने में थे और वो साइकेट्रिक इलनेस में होते हैं, डिमेंशिया में नहीं होते. नहीं होता ना? नहीं होता है, लेकिन असाइलम में ले जाके वहां पे क्या करेंगे वो पता नहीं है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो न्यूरोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है. क्योंकि वो पेशेंट बता नहीं पाएगा. हाँ, वो बता नहीं पाता है. वहाँ कोई रह नहीं सकता. हाँ, किरण आंटी, बेसिकली असाइलम वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको पता है कि उनके मतलब साइकेट्रिक कंडीशन है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और क्लियर है कि वो लिटरली साइकेट्रिक कंडीशन से ही गुजर रहे हैं और उनके पास असाइलम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ पे सेल्फ हार्म और बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है. लेकिन उसके अलावा जैसे डिमेंशिया या फिर एज रिलेटेड चेंजेस और किसी क्रिटिकल कंडीशन से, मेडिकल कंडीशन से गुजरना, इन सारी चीजों के लिए हम असिस्टेड लिविंग होम्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और हम भी मेडिकल असेसमेंट जैसी चीजें करते हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और हम उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल मतलब देखने के बाद अगर हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं और हमें पता है कि हम उनके लिए सही हैं, तभी हम उनको हमारे यहाँ पे बुलाते हैं. मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे सुनते हैं हम लोग अपने पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ना रखे, सिर्फ ओनली जस्ट फॉर दैट. आई मीन जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि नहीं? हाँ, वी मस्ट नो इट. एक ही ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हैं, तो इतने अब हमें तो अवेयर रहना चाहिए. बिल्कुल. और हमने रिसेंटली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे थे, तो किसी ने हमें ये भी क्वेश्चन किया था, मतलब ये भी शेयर किया था कि उन्हें लगता था कि डिमेंशिया तो मतलब यूएस मतलब बाहर की कंट्रीज में होता है, इंडिया में तो शायद ही होता हो करके, पर वो एक मिसकंसेप्ट था. तो हमारे अवेयरनेस से हम यही सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म हम इसीलिए यूज कर रहे हैं. मोह टीवी हमें ये चांस दे रहा है और हम मिलकर यही अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमेंशिया क्या है और उनके रिलेटेड जो मिसकंसेप्ट्स है कि असाइलम जगह होगी डिमेंशिया वाले के लिए, तो वो सारी मिसकंसेप्ट्स हम आंसर कर रहे हैं. क्या सही है वो डायरेक्शन दे रहे हैं. पर बाहर की कंट्रीज में तो जैसे देखते हैं कि इसकी फैमिली केयर नहीं कर पाते तो वो ले जाते हैं एल्डर होम्स में, वो छोड़ते ही नहीं है बच्चों के पास. वैसा इंडिया में नहीं है आंटी. इंडिया में नहीं है, वहाँ पर तो वही है. Good afternoon to all. I had one question. You had asked, there is some the term postural hypertension was used somewhere. What does it mean, please? So, hypertension, blood pressure, we are aware, right? Posture में अगर कोई चेंज आता है किसी मतलब there is a type of hypertension which is postural hypertension. Posture में अगर किसी कोई चेंज आता है, एकदम से अगर उठ रहे हैं, बैठे थे और एकदम से उठ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, the BP falls, that is postural hypertension. अगर लो सरफेस से हाई सरफेस में जा रहे हैं या फिर आप बेड से लेटे हुए तो बैठ रहे हैं, तो एकदम से अगर आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो उसे postural hypertension, और सॉरी कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है तो postural hypertension. Okay. Thank you. साजू, अभी ये डिमेंशिया का बंद कर रहे हो कि इस बिल्कुल अंकल, ये लास्ट सेशन था. Puri ji, this is like a dementia awareness week, so awareness month. So संजना कितनी अवेयरनेस चाहिए? एक लेक्चर हो जाए, 2 लेक्चर हो जाए, दैट इज एनफ. राइट. सो पूरी अंकल के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेफिनेटली अगली बार वी ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट डिमेंशिया अभी सब समझ लग गई है. राइट. और हमको बीमार मत कर देना बात डिमेंशिया. बिल्कुल. अब हम सर्टिफाई कर सकते हैं कि पूरी अंकल से लेके जितने लोगों ने डिमेंशिया काफी बार अटेंड किया है कि आप लोग एक्सपर्ट्स हो चुके हो understanding what is dementia. But it is nice that you continued it for so long, because today I'm attending for the first time. Before that I wasn't able to attend. Right. So a repetition once or twice is not really bad. Sure, glad to hear just to like just like जैसे अभी साजू और प्रसिता बोल रहे थे, like being this is a dementia awareness month, and already there are so many misconceptions out there about dementia. So wo awareness is like a
very important aspect related to it. So that's why we were doing a lot of sessions. But definitely, like you know, जैसे हमेशा हम different curate करते रहते हैं different doctor talks, वैसे हमेशा जैसे प्रसिद्धा हमेशा एक नया topic लेके आती थी. But being this a dementia month, we thought of just focusing on this. So साजू और नायर को डिमेंशिया का अभी छोड़ दो, उनको कोई लिवर का दूसरा कोई अच्छा सब्जेक्ट दे दो. पक्का. I have one question. Saju, I have one question. Can I ask? Yeah, sure. Yeah, Teji, please go ahead. Yeah. My wife is suffering from dementia. She often complain चक्कर आ रहे हैं. उस वक्त क्या करना चाहिए immediately मुझे? सबसे पहले उनका ब्लड प्रेशर एक बार चेक करना चाहिए रेगुलरली, कि उनका ब्लड प्रेशर में कोई ये तो नहीं हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रहे हैं. हाँ, और ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे तब उनको एक बार लिटा के भी चेक करना है, एक बार बिठा के भी चेक करना होगा, ताकि हमें पता चले कि ये लेटने के टाइम हो रहा है या फिर बैठने के टाइम हो रहा है. तो डिफरेंट अगर फ्लक्चुएशंस हैं, वेरिएशंस हैं ब्लड प्रेशर में, सो विल नो कि हाँ उस वजह से चक्कर आ रहा है. और थोड़ा एक्सरसाइज या फिर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी कराने के बाद एक और बाद भी ब्लड प्रेशर थोड़ी देर में चेक करना चाहिए, ताकि पता चले कि कुछ फिजिकल एक्सर्शन की वजह से तो नहीं उनको चक्कर आ रहे हैं. इसके अलावा रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एल्डरली हैं तो फिर नींबू मतलब सॉल्ट्स वगैरह ये सारी चीजें रेगुलरली जानी चाहिए. ORS है, डिहाइड्रेशन ना हो, तो ये सारी चीजें एक मतलब कुछ कारण हो सकते हैं चक्कर आने. एक बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए हम सोडियम पोटेशियम चेक भी कर सकते हैं. सो कम हो किडनी फंक्शन टेस्ट KFT अगर करवाते हैं तो उसमें सोडियम पोटेशियम ये सारी चीजें वैल्यूज पता चल जाती है. तो उसमें भी पता, अगर वो कम है तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. राइट सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. यस, थैंक यू. अच्छा प्रसिद्धा, in जी. one sitting within 10 minutes माने 2 numbers come. If I take my pressure na, abhi just now I have taken, it is now 145, and after 10 minutes it becomes 150. So within 10 minutes how the changes are there? आप जो जिससे टेस्ट कर रहे हैं आंटी, वो अभी आपका इलेक्ट्रॉनिक है. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक है. इलेक्ट्रॉनिक में फ्लक्चुएशन होता है. अच्छा. इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पूरा करेक्ट रीडिंग देता है, लेकिन हम उस पर उतना रिलाई नहीं करते हैं. तो इसलिए बेसिकली जैसे घरों में लाइक इन आवर फैसिलिटीज वी यूज दिस मैनुअल वाला जो होता है ब्लड प्रेशर वो ही करना होता है. यस साजू, आप कुछ बोल रहे थे. सो वही प्रसिद्ध आपकी उस पे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल में जब आप चेक करते हो तो उसमें भी डिफरेंस आएगा आपको. मैनुअल बीपी आप जब चेक कर रहे हो एक्यूरेट है, और जब आप इलेक्ट्रॉनिक वाला चेक करोगे तब भी आपको 19-20 का फर्क आएगा. लेकिन वो जो वेरिएशन है आप उसको ध्यान में रख सकते हो. मतलब उतना ही वेरिएशन अगर हर बार रहता है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक से जब चेक कर रहे हो तब उतना कम लेके आप रीडिंग लोगे या फिर ज्यादा लेके चलो. चार्जेस क्या है रेजिडेंस के लिए मंथली? उसके लिए एक्चुअली नंबर शेयर किया है साजू ने. सो आदिति शी डील्स विद इट. अगर आप एक बार उनको कॉल कर लेंगे तो वो चार्जेस आपको बता सकते हैं. चैट बॉक्स में आदिति जैन हमारी ऑनबोर्डिंग मैनेजर है जो कमर्शियल्स और इन सारी चीजों से डील करती है. तो नीलू आंटी जो कंफर्टेबल आप इस नंबर पे ट्राई कर सकते हैं, या तो आप अपना नंबर बता सकते हैं तो मैं उनको कांटेक्ट करने के लिए भी बता सकता हूँ, या तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. आंटी आप नीलू जी आप म्यूट पे हैं. मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, अगर कोई पूछे राइट पड़ता है ना कि व्हाट आर द चार्जेस. राइट. हाँ, नियर अबाउट यू कैन टेल. मतलब नीलू जी ऐसा है कि आप ना वो आदिति से कनेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपने ERM से कनेक्ट कर लीजिएगा, उनके थ्रू आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी. ओके, थैंक यू. ठीक है, तो आपके पास आदिति का नंबर लिखा ही हुआ है. Sanjana, other than IMOHA member also get check, can go for checkup. Other than IMOHA, people are also can go there. Yeah. Yes. ऐसे other than IMOHA, it's like open to everyone. It's not like exclusive for IMOHA. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, प्लीज. फिर हम रैप अप करते हैं थोड़ा सा. हाँ, संजना 1 मिनट का. हाँ, प्लीज. एक छोटा सा. हाँ जी. हाँ, डॉक्टर साहब मैं कह रही थी कि जैसे हम अपनी बॉडी डोनेट करते हैं
ठीक है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आइस है तो आइस दे देते हैं, लिवर है तो लिवर दे देते हैं, लंग्स दे देते हैं। क्या उस पूरी बॉडी में कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारा कोई बॉडी का पार्ट हो जो इस पेशेंट के काम आ जाए? ये मतलब अगर मतलब आप ये कहना मतलब इससे हटके है पर एक मन में आई ये बात। अच्छा, ओके, मतलब हमारे यहाँ से किसी को, जैसे मैंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो बॉडी का पार्ट उनके काम आएगा दे विल यूज इट। कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जो ऐसे पेशेंट्स के काम आ जाए हमारी बॉडी में से? नहीं आंटी, डिमेंशिया के लिए आप बात कर रहे हो? नहीं, बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि इस टाइप की भी हम कोई हेल्प कर सकते हैं? नहीं आंटी, मतलब अभी ऐसा कोई स्टडी नहीं निकला है अभी ऐसा कोई नहीं है, जस्ट ओनली जस्ट नहीं अपने आप को लग रहा था। I mean, curiosities are always welcome. हम है ना? It हाँ। was a sweet gesture. It was a sweet gesture by you, Kiran ji. वो ऐसे एकदम मुझे लगा कि कुछ हम कर रहे हैं तो ये भी किसी के लिए कुछ कर जाए। नहीं, Kiran. नीलू आंटी, मैंने चैट बॉक्स में मैं कहा इमोहा के एल्डर्स बिल्कुल ठीक ठाक है, नोबडी इज डाउन विद डिमेंशिया। हम इमोहा के एल्डर्स को क्योंकि प्यार आपके कर रहे हैं। सर इतने क्वेश्चंस हैं लोगों के दिमाग में, although they are not suffering for dementia, but plenty of questions are being raised on the subject there. I don't know why. Puri ji, there When are everybody a is few fine. When elders. everybody is fine. No, Puri ji, there are a few elders who have dementia, who's whose relative have dementia. So sometimes we don't know, and sometimes everyone has it, and it doesn't come out and open out there. But having said that, this Prasita Saju has shared the Epoch Elder Care website on the chat. तो आप लोग उससे भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से आप लोग का कॉपी नहीं हो रहा है तो आप जनरली गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको तुरंत वैसे भी मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप अपनी ईआरएम से पूछ लीजिएगा। ईआरएम्स को आपके इपॉक एल्डर के हर को पता होगा यहाँ पे, दे कैन डायरेक्टली गिव यू। एंड ऑल्सो just for Saju's and Prasita's reference, Tej Kumar sir has shared his number. You can also if he wants, Tej sir, you want someone to connect with you? I have sent my contact number. Yeah. Right. Yeah. I'd like to be contacted and advised. Sure. I'll pay. Fine. Thank you so much, Saina, what you have said. Thank you. Thank you. Bless you. Thank you, Tej Kumar ji. I know Thanks it. to Thank you. Saju and Prasita. It's our Thank you, pleasure. to Saju be and part of Prasita. this. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you, Thank you. everyone. Bye, bye, Thank you, Sanjana. God Thank bless you you. very much. Bye. Bye.